and now on list for myomectomy. Start करो. बेटा पहले तीनों सिनेरियो को पढ़ के सुना दो, then we'll start with one by one. Okay sir. सर एक मिनट मैं जरा पीछे जाऊँ फिर जहाँ सिनेरियोस लिखे हुए हैं. जी सर. The first scenario is about Mrs. Noor, 36 years old, admitted with a नहीं complaint of बेटा heavy menstrual. सारी instructions, सारी instructions ताकि उन्हें पता हो. जी सर. Sir, instruction में number 1, what more information specific to each patient would you like to know? Secondly, what नहीं pre-op क्योंकि preparation? बेटा जब आप बताते हो ना तो you need to start from the आप जो सारा कुछ आपको लिख के दिया हुआ है ताकि Sir, सबको instruction for candidate sir. नहीं जो शुरू से आपकी जो स्टार्ट होंगे इसके. It starts with जो ये है, this is structure discussion task assessing, यहाँ से लेके स्टार्ट होगी. Okay, sir. This is structured discussion task, assessing the patient safety, information gathering, communication with the patient and relatives, and applied knowledge about a pre-op gynae route of the ward, and asked to see 3 patients who are due on tomorrow's elective list. And information regarding 3 patients is given below. Number 1, Mrs. Noor, 36 years old, admitted with the complaints of heavy menstrual bleeding and fibroid uterus on scan. Secondly, Mrs. Zubaida, 55 years old, para 2, admitted with a mass in abdomen, scan showing 16 into 10 centimeter ki right axil cyst. Procedure is staging laparotomy. And the third one is Mrs. Akshan, 26 years old, nulliparous with a primary subfertility, and procedure is for diagnostic laparoscopy. चलो ठीक. सर आगे भी बताना है. हाँ बता दो. You will have 10 minutes for a structured discussion on how you will conduct the round from now onward with the examiner based upon the 3 questions for each case. Number 1, what more information specific to each patient would you like to know? Secondly, what pre-operative specific to each patient would you like to address? And thirdly, what important points would you include in the consent for each case? चलो ठीक है. Then now let's start with the first patient. Okay, sir. The first patient is Mrs. Noor, 36 years old, admitted with the complaints of heavy menstrual bleeding. Assalamualaikum, my name is Dr. Sri. I'm one of the exam candidate and ready for the structured discussion. The information provided to me is 36 years old lady with a history of the HMP. First of all, I will review the file of my patient to know the important points regarding her history, like since how she is suffering from this and how it affected her quality of life and what effect on the health. And still my patient is bleeding now, and any medical surgical comorbidity, her parity and mode of the deliveries. And I would like to know about the fertility wishes of my patient, any specific drug and other allergic history or any drug which my patient is using which need to be stopped before the surgery. As my patient is in the reproductive age group, I would like to know her LMP and pregnancy ruled out by the urine pregnancy test or not, and what treatment she is currently taking. I will review all the investigation and their results and will see or check if there is any pending investigation. As there was a risk factor that my patient suffer from the heavy menstrual bleeding, so I will specifically look for the hemoglobin, blood group with RH factor, and we'll see if there is any reservation regarding the blood transfusion required or not. And as my patient is for the myomectomy, so I will review the ultrasound report for the fibroid, its size, site, location, and for the pre-op surgical planning and any further investigation if needed. Related to the surgery, there is a risk of the bleeding, so I'll check the blood arrangement of my patient in collaboration with the blood bank. I will check whether my patient is provided with the information leaflet regarding the procedure and knows about its pros and cons, and does she knows about the alternative treatment modalities or not. I will check the consent form and reconfirm the consent of bleeding and transfusion, hysterectomy, adherence, and reconstraint. I will see the pre-anesthesia assessment of my patient and will and the risk associated with the anesthesia. Proceed with the WHO surgical safety checklist. As intraoperatively there is a risk for the bleeding, so I'll go for the microsurgery, safe surgical techniques for the and a single incision for the fibroid removal, infections or the antibiotic prophylaxis after excluding the allergies. And as there is a risk to the damage structure, so I will opt for a microsurgical techniques. Postoperatively, I will go and for a enhanced recovery program, venous thromboembolism risk assessment, and labeling of the specimen and arranging her next sitting with histopathology report. Okay, next patient. सर पहले मैं सारे कर लूं फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे या वन बाय वन साथ साथ डिस्कशन? अभी बेटा नेक्स्ट पेशेंट तो आपका टाइम अभी ज़्यादा हो जाएगा.
We will do Yes, the sir. next patient. Okay, sir. The next patient is Mrs. Zubaida, 55 years old, with mass in abdomen and a right adnexal cyst. Assalamu alaikum. After giving my information, I will review my patient's file about her biodata and the important history point, like she is menopausal or not. If yes, then how long? And if she is using any hormonal medicine or any history of the postmenopausal bleeding discharge. Regarding the mass in its onset, duration, any change in the sleep, appetite, bowel, bladder, herpes, weight loss, pressure symptoms, any comorbidities, history of any cervical smear, sexually transmitted diseases, any medical surgical comorbidity, the mode of the deliveries, drug allergies, and the family history of carcinomas. In the examination, I want the BMI of my patient, the previous scar, and the examination related to the mass, and I will review her investigation and and we'll see if there is any pending investigation. I will check the ultrasound finding of the cyst specifically related to the malignancy and CA125 for the calculation of the risk malignancy index, and if there is needed, then the CT scan of my patient. And I will check whether my patient is provided with the leaflet information giving about the surgical laparotomy information and about its pros and cons, and will check the consent form and the consent for the bleeding, damage to the adjacent structure, pain postoperatively, and the risk of the thromboembolism. I will ensure the preoperative anesthesia assessment, the risk associated with it, the venous thromboembolism risk assessment, the bowel preparation of the patient, antibiotic prophylaxis, and we'll check the WHO surgical safety checklist and MDT involvement. Post-operatively, I will ensure the enhanced recovery program venous thromboembolism, labeling of the specimen, and follow-up of the patient after discussing with the multidisciplinary team with the histopathology report. The next scenario is about 26 years old, Nelly Paris, with a primary subfertility. After giving my introduction to the patient, I will review the patient file for the important information like how long she is married for, is this first marriage, are they living together, and since how long they are trying together, and then about the menstrual history, regularity, and pain in the form of the dysmenorrhea, dyspareunia, and any heavy menstrual bleeding. History of any surgical transmitted diseases, sexually transmitted diseases, vaginal discharges, LMP, long-standing fever, any contact with a tuberculous patient, and the chronic pelvic pain. Her medical surgical comorbidities, drug and allergic history, and the family history of infertility. I would like to review the BMI of my patient and review all the investigation, including the basic health profile and her basic health profile, ultrasound hormonal profile, ultrasound pelvis, or any HSG report available or not. I will review my patient's information and my patient's concerns regarding the surgery and its related pros and cons and alternative treatment modalities. And I will reconfirm the consent of the patient regarding the surgery and the risk associated with the diagnostic laparoscopy, including the vascular bowel injury, cervical injury, hernias, and the possible risk of negative laparoscopy. And I'll also check the consent of any treatment if there is anything seen on the laparoscopy. And postoperatively, I will ensure patients enhanced recovery program. Sure. हमारे तीनों क्वेश्चंस आपने आंसर कर दिए? जी सर. चलो. So we still left with 2 minutes. You know that. और सभी 2 मिनट और नहीं. अच्छा, इसमें अगर सेकंड वाली पेशेंट का RMI 900 आए, फिर क्या करेंगे? Sir, this RMI is more than 250, and in this age, if the RMI is more than 250, then there is 70% risk of the malignancy. With an empathically approach, I will consult my patient regarding the malignant diagnosis based upon the history and investigation, and we'll tell them further we have to do the surgical staging for the extent of the disease and its management. So that is not going to be, and for further planning of the management. And for that purpose, we need some specific investigation like CT scan, liver function test, renal function test, and quality function, and then multidisciplinary team involvement, oncology involvement, anesthesia assessment, optimizing any health condition from which my patient is suffering, assessing her risk factor. I will prepare my patient for the surgical staging laparotomy. Okay, good. Sure, that's it. Generally, though, I think you did very well and you covered most of the things. अब कुछ चीजें जो मेरा ख्याल है जो आपने इसमें मिस की हैं वो 3-4 हैं. ये पेशेंट आप देख कहाँ रहे हो? सर गायनी वार्ड में. गायनी वार्ड के अंदर. और इसका भी होना क्या है? Sir, they are on list tomorrow.
they are on the list tomorrow. Tomorrow they are in this जी sir. Okay. जब tomorrow लिस्ट वाली होती हैं तो और एक important information सबको क्या देते हैं आप? Sir NPR? मेरा ख्याल है जरूरी नहीं है. Number 2. सर वो तो डिस्कस कर लिया सारा पेशेंट के साथ कि what procedure we are going to do and what would be the result after that, how we will No. proceed further. फिर ये बेटा अभी तो हम एक दिन पहले है ना, एक दिन पहले जी और क्या करोगे? और इंस्ट्रक्शंस सर में क्या करोगे आप? या हमने कुछ और क्या करना है इसमें? एनेस्थीसिया वालों को इन्वॉल्व करना? जी सर वो तो एनेस्थीसिया रिस्क असेसमेंट और वो इन्वॉल्वमेंट कहती थी. उनको बुला के उसकी वही जो सारी उसकी इन्वेस्टिगेशंस को रिव्यू करना है, वो आपने किया. जी सर. और साथ एनेस्थीसिया वाले से पूछ के और उसका एनपीओ कब से होना है वो. जी तीसरा सर. जो ये मेजर सर्जरीज होती हैं जी सर. उसमें आपने यू ऑलवेज टॉक अबाउट द पेशेंट के जी. नंबर 1 कि आपका नॉर्मली एक्सपेक्टेड इनसीएन क्या होगा, ठीक सर. वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करते हो उसे. नंबर 2 उसका स्टे कितना होगा पोस्ट ऑपरेटिवली और वो कहाँ जाएंगी और उसके बाद उनकी रिकवरी का क्या सीन होगा, ठीक कितने सर. दिन रुकना पड़ेगा. ये 3-4 पॉइंट्स इसमें अगर आप ऐड कर लोगे तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक तीसरा इसी में करते हुए जब आप बात करोगे, क्योंकि हमारी जनरली ऐसी कोई चीज़ है जिसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, जैसे हमारी लेप्रोस्कोपी का था. बाकी तो हमारी लेप्रोटमी सी दोनों. एक हमारा अगर लेप्रोस्कोपी का था तो यू हैव टू जी मेक सर. श्योर कीजिए कि वो इक्विपमेंट इज वर्किंग कंडीशन और रेडी फॉर टुमारो. ओके सर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लो रोक के. हाँ सर ये मैंने इक्विपमेंट के स्पेसिफिक इक्विपमेंट और इंसिएंट के पॉइंट्स डाले थे, लेकिन मुझे ना ये नहीं समझ लग रही थी कि एग्जामिनर हमें फाइंडिंग देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मायोमेक्टमी है तो ये फाइब्राइड है, तो आप फिर हम बताएंगे कि इस फाइब्राइड के लिए हम इतने इंसिएंट तक जा सकते हैं, और अगर इस लेवल का फाइब्राइड है तो हमें ये इंसिएंट यूज करना है. नहीं, और सेकेंडली जो प्री ऑपरेटिव इक्विपमेंट अभी आपने बात की, अगर मैं WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की बात करूं तो उसमें प्री ऑपरेटिवली पेशेंट के एंट्री से पहले इक्विपमेंट का पॉइंट आ जाता है, तो वो सेपरेटली बताऊं या वो उसमें कवर हो जाएगा? नहीं देखो, जब आपका प्री ऑप में पेशेंट या आपका एक दिन पहले है, आप उसे कहोगे मैं उसकी फाइल रिव्यू करूंगी फॉर ऑल द इन्वेस्टिगेशन, ठीक और है. उसकी स्पेसिफिकली द इंफॉर्मेशन व्हिच आई वुड लाइक टू नो जी सर. बिफोर वी टॉक टू द पेशेंट कि जी उसकी आप अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग मांग लो, ब्लड ग्रुप मांग लो, उसका अपना एचपी मांग लो. ठीक सर. वो आपको एग्जामिनर बता देगा. मुझे आपने एक्चुअली मौका ही नहीं दिया वहां तक बीच में इंटरवीन करने का, क्योंकि आप इतनी तेज जल्दी जल्दी चल रहे थे कि मैं बीच में सोच रहा था मैं रुकूं कि ना रुकूं. सॉरी लेकिन सर, मुझे you were मुझे doing यही सीरियस से बताया था सॉरी कि आपको इंटरवीन करके ना वो फाइंडिंग्स देंगे और आपने उस फाइंडिंग के मुताबिक अपना केस चलाना है, लेकिन नहीं, हर सीनियर के पास इतनी डिफरेंट स्टोरी थी ना, मुझे ये स्टेशन समझ नहीं लगा सही तरह से. देखो आप जब भी आप प्री ऑप या पेशेंट से बात करोगे जी सर. तो उसमें you need to have certain information before you can talk to the patient. जी सर. अब वो जी. इंफॉर्मेशन देखो ना, आप किसी को भी काउंसलिंग करने से पहले आपके पास सारी उसकी इन्वेस्टिगेशंस और आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट्स होंगे तो देन यू कैन प्रोसीड. एग्जैक्टली सर, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं क्या हाँ, करूं, मैं तो जनरल इसीलिए पॉइंट हाँ, लिख दूं. नहीं पहले आप जब उसकी हिस्ट्री लोगे उसे कहो जी मैं इसकी वुड लाइक टू रिव्यू द फाइल जी सर. and need to have certain information like her ultrasound findings, her ठीक. previous surgery, if she had any previous surgery. वो पेशेंट जो अपना अगर वो होगा एग्जामिनर होगा वो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा. And ठीक after सर. gathering this information, then I'll talk to the patient कि जी आपकी अगर हीमोग्लोबिन 10 है, आपका अल्ट्रासाउंड के अंदर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स आए हुए हैं, आपकी प्रीवियस लेकिन सर्जरी नहीं हुई हुई, तो हम इसको अकॉर्डिंगली इस तरह लेके हम चलेंगे. ठीक सर. ठीक. ओके. और उसके अकॉर्डिंगली फिर देन वी कैन मैनेज कीजिए कि हाँ पे अब क्या होगा एंड ड्यूरिंग सर्जरी क्या क्या हो सकता है. जो हिस्टेक्टमी सॉरी मायोमेक्टमी वाली पेशेंट है उसकी आपने एलएपी जरूर पूछी, उसका कॉन्ट्रासेप्शन का नहीं आपने पूछा. जी सर, और कॉन्ट्रासेप्शन में हाँ कॉन्ट्रासेप्शन सही. आपने उसने मिस कर दिया.
जब उसकी फाइंडिंग पे आप आ जाओगे तो उसका आप देखोगे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है ये, तो बता दोगे कि जी कि आइदर वी गोना गिव फेनिस्टीन, या अपना जब ज़ाहिर है आप फाइंडिंग उसकी पूछोगे तो यूट्रस मोबाइल है कि नहीं है, फंडलाइट उसकी कहाँ तक आ रही है, मैस फील होता है कि नहीं होता, एंड देन अकॉर्डिंगली विल डिसाइड कि जी हमने उसका इंसीन कौन सा देना है और इंसीन में हमने क्या करना है। और इसी ड्यूरिंग करते हुए देयर इज अ चांस ऑफ हैवी ब्लीडिंग के अंदर हिस्टेक्टमी का होता है, लेकिन दिस इज वेरी लो। आपने ठीक सर। इन्फॉर्म जरूर कर देना, एंड देन ऑफ जी। कोर्स उसकी रिकवरी, और उसमें फिर उसकी आपने डीवीटी की प्रिवेंशन कर दी, अपना इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस और लेट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में उसको आप इन्फॉर्म करके दोगे। लेकिन जनरली जी। आप उसको ये जरूर बता दोगे कि जी पोस्ट ऑपरेटली आप जाके हमारे वार्ड में रुकोगे फॉर दिस मच टाइम, और आपको हम 2 दिन या 3 दिन रखेंगे, एंड योर रिकवरी विल बी सून। अगर आप कहीं काम करते हो तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 वीक्स ऑफ वहाँ से आपकी चाहिए होगी, ताकि वो सारी ठीक। इन्फॉर्मेशन उस तक आ जाएगी। अगर वो वर्किंग वूमन है तो फिर उसमें रूटीन में भी, अगर उसने बच्चे वगैरह भी संभालने हैं, तो आपको 3 से 4 हफ्ते लगेंगे टू कम बैक टू योर बेसिक रूटीन जहाँ पे आप अभी हो। और उसमें चांसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने हैं, और हमें प्री ऑपरेटिवली अगर 10 हीमोग्लोबिन है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, और उसका ब्लड ग्रुप स्पेशली अगर नेगेटिव आपको बता देते हैं, तो यू नीड टू हैव ओके सर। 2 to 3 ब्लड ग्रुप्स अरेंज, ब्लड अरेंज, वो आप कर ठीक। दोगे। ये जी। हमारे लिए बड़ा स्पेसिफिक है। अगर आप एमआरसीजी का एग्जाम दोगे वहाँ पे नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे तो आपने सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है टू द ब्लड बैंक कि जी हम ये नेगेटिव पेशेंट लेके जा रहे हैं, तो शायद हमें इतनी ब्लड की जरूरत पड़े, तो आप तैयार करके रख लें, तो वो ओके सर। क्रॉस मैच। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ब्लड अरेंज करते हैं बाय द पेशेंट ट्रेनर, तो इसलिए आपको आगे जी प्री ऑपरेटिवली आपने उसका वो अरेंज करके रखना है। ठीक। ठीक सर। और फिर उसके बाद जिस तरह मैंने आपको कहा, वो दूसरा जो थी वो सेकंड वाला केस, उसमें मेरा ख्याल है कि आपने एमडीटी का जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन उसमें यू नीड टू बी वेरी बिल्कुल। स्पेसिफिक कि एमडीटी आपने किसको करोगे, एंड ऐसा पेशेंट उसकी ऑन्कोलॉजी वालों से पहले एक मीटिंग डिस्कशन, वो भी अगर हो पॉसिबल हो, लेकिन अभी एक रात रहेगी तो शायद ना पॉसिबल हो, लेकिन उसकी होनी पहले ज़रूरी चाहिए थी। और नंबर 2, पोस्ट ऑपरेटिवली कीमोथेरेपी का चांस या क्या है, वो इन्फॉर्म आप जी ज़रूर सर। करें कि इसकी हमें सब्सिक्वेंट आगे जाएँगे। शी इज़ अ कैंडिडेट ओके। जिसमें तो इंसीन ही मिड लाइन आप दोगे, ताकि जी सर। उसके साथ करोगे, एंड उसके साथ जब मिड लाइन जाओगे तो सारी जो हमारी क्राइटेरिया ऑफ मैलिग्नेंसी की शेड्यूल सर्जरी, अपॉर्टमेंट के स्टेप्स। स्टेजिंग प्लॉटिंग के स्टेप्स आप थोड़े से उन्हें बता दोगे कि जी हम जी सिर्फ सर। आपका सिर्फ ये नहीं निकालेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट क्लियरेंस है। अगर वो किसी वजह से स्टेज बड़ी हो जाती है तो फिर शायद हो सकता है कि हम सिर्फ इसकी साइटो रिडक्शन या हम ओपन क्लोज करें या सिर्फ बायोप्सी लेके वी कम आउट। ओके सर। यानी कि ये सर जैसा अभी ठीक आपने ठाक बात। मुझे जी, जिस तरह से अभी आपने मुझे दिया इनका आरएमआई 900, इस तरह से अगर एग्जामिनर मुझे मैलिग्नेंसी का आरएमआई देता है, तो फिर मैं जी अपने पेशेंट की काउंसलिंग में ये पॉइंट सेट कर दूँगी कि मैंने क्या करना है और इस क्या जी हो सकता है सर्जरी ओपन में और पोस्ट ऑपरेटिवली कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड है कि नहीं? बिल्कुल, ये ठीक 3-4 सर। चीज़ें आपसे कह दोगे। और उसमें बेहतर ये है कि जब इस किस्म का केस आता है, तो उसमें अगर कोई उसका रिलेटिव्स हैं या कोई क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उनको भी काउंसलिंग के अंदर साथ शामिल करोगे, ठीक ताकि सर। कि जी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब जितनी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, वो दे आर नॉट वेरी गुड, और लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो भी बेस्ट होगा पेशेंट के लिए वो हम प्लान करके कर देंगे। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रोज़न पेल्विस, ऑफ जस्ट गेटिंग हुँ, अ बायोप्सी, जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें कई बार कोलोस्टमी या अपना उसकी, और इसमें स्पेसिफिकली इंजरी टू द इंटेस्टाइन और टू द हुँ, ब्लैडर हुँ, होगी, तो हुँ, उसकी हुँ। मैनेजमेंट के लिए हमने बाकी लोगों को स्टैंड बाय करना है, या हमने किस तरह अरेंज करके देखना है। और सर जिस जो तरह से हम अपना जी, जी, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, नहीं, नहीं, सॉरी। बताओ, बताओ। सर जिस तरह से हम अपना मैलिग्नेंसी का केस लेके चलते हैं, उसमें तो हम एग्जामिनर को ये नहीं कह सकते कि ओपन करके मैं डिसाइड करूँगी कि मैं सर्जरी कर सकती हूँ या मैंने बायोप्सी। उसमें तो हम पहले डिज़ीज़ की एक्सटेंट करते हैं एमआरआई से या सीटी स्कैन से और फिर डिसाइड करते हैं कि हम सर्जरी में क्या करने जा रहे हैं, डिबल्किंग करने जा रहे हैं या हम जस्ट बायोप्सी। तो ठीक। इसमें भी मैं डेफिनिटली प्लान करूँगी या ये मैं नहीं, बताऊँगी उन्हें काउंसलिंग में नहीं, फिर? नहीं, देखो बेटा, इसमें देखो नंबर 1 आपको आरएमआई अगर 900 मिल गया है, आप इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी माँगोगे फिर। कि जी इसका ठीक सर। एमआरआई एक्सटेंट देखने के लिए कुछ है, हुँ, डॉपलर हुँ। है, सारा कुछ है। अगर सारी चीज़ें आपको ज़्यादा लगती हैं कि जी कि हाँ जी मैस है, इतना बड़ा है, मोबाइल नहीं है, तो हुँ, हुँ। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड टू द पेशेंट, कि ये चांसेस हैं कि जी हम
आपको ये, क्योंकि ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन या सारी चीजें ये एक आपको आइडिया देती हैं कि जी हाँ अंदर क्या हो, लेकिन जो जब हम एक्चुअली ओपन करते हैं तभी देन वी फिगर इट आउट कि हमने करना क्या है। हाँ, हमारा प्लान जो है उसमें हमने जो जाके करना है वो ऑफ कोर्स THBSO एंड साथ अगर उसकी अपना एक्सटेंशन है या कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी स्टेजिंग डिपार्टमेंट के सारे स्टेप्स पूरे करने हैं। ठीक पर सर। वंस वी ओपन एंड वी फाइंड आउट कि जी एवरीथिंग इज क्लस्टर्ड टुगेदर और वहाँ पे ऊपर आपका मोमेंटम जो है वो बना हुआ है केक, तो उसके हिसाब से देन अकॉर्डिंग टू दैट देन वी हैव टू बी इन्फॉर्म कि जी चांसेस आपकी डजंट लुक गुड, लेकिन इसके अंदर जब हम जाएंगे फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव दे जाता है, या तो हम साइट रिडक्शन करते हैं या जी आप सर। फिर एक बार उस टाइम अगर देख के देखते हो कि एवरीथिंग इज सो प्लास्टर टुगेदर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग या स्प्रेड इतना ज़्यादा है, तो देन यू डोंट काइंड ऑफ इंटरवीन अर्ली। फिर उसको स्टेज करना पड़ता है विद कीमोथेरेपी। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है 3 साइकिल्स के बाद फिर दोबारा रिव्यू एंड री-लुक लेप्रोटमी भी की पॉसिबिलिटी है। ठीक सर। पर ठीक। ये सारी इन्फॉर्मेशंस पहले आपने पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को एक्सप्लेन कर देनी है कि वो हम करेंगे। ठीक है। हमने उतना भी नहीं डराना कि वो परेशानी ना कराएँ। ठीक। और अगर इनमें से कोई ऐसा है जो आप लेट्स सपोज़ इसी का लेट्स मैं इसी को लेके आ जाता हूँ, कि अगर वो जी कहते हैं सर। जी इसका MRI नहीं हुआ, हम्म। तो फिर आप उसे कह दोगे कि जी कि फॉर द वर्कअप वी लाइक कि हम इसको कल पे लिस्ट पे नहीं डालेंगे। विल हम्म। रीशेड्यूल इट, उससे पहले हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएँ, फिर हम करेंगे। इसी सर तरह ये मेरा ठीक सर। अगर फिर इसी तरह जैसे किसी का ब्लड अरेंज नहीं हो रहा, पहली बारी पेशेंट का और उसकी जी। HP10 है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तो अगर ब्लड हम्म। अरेंज नहीं होता तो फिर देन ऑफ कोर्स उसको भी हमें फिर रीशेड्यूल करना ज़रूरी है। ठीक सर। सर ये मेरा एक क्वेश्चन भी था पढ़ते हुए, वो मुझे एक पॉइंट मिला था, उन्होंने कहा था कि अगर कहीं पे एग्जामिनर आपको कोई एक ऐसी चीज़ दे देता है जिसकी बेसिस पे केस आगे नहीं जा सकता, तो यू हैव टू से कि अब मैं इसको रीशेड्यूल करूँगी। वो आपने मेरा पॉइंट क्लियर कर दिया। नहीं तो ये हम ठीक करते सर। नहीं, प्रैक्टिकली यही करते हैं कि नहीं करते? जी सर, यही होता है, सुबह लिस्ट के ऊपर पेशेंट कैंसल हो जाता है। नहीं, हमने सुबह नहीं करना ना बेटा, उसको हमने कैंसल रात को नहीं, मैं करना है। वैसे देयर इज़ अपनी अ ट्रेनिंग का डिफरेंस। कह रही हाँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो आप प्रोफेसर का वेट करते हो, फिर आके उसे बताते हो, तब थी। उसे ऑफ कर देते हो, वो बेचारी तब तक एनपीओ होती है। हुँ। 2-3 बजे दोपहर तक उसका फैसला नहीं होता, तो वो तो ये प्री ऑप का जो ये वाला सेशन है इसमें, ताकि ये या आप ये भी कह सकते हो कि इसमें आपको उन्होंने क्या रेज़िडेंट बनाया है कि एज़ अ सीनियर स्टाफ बनाया है? सॉरी मैंने देखा नहीं। सर ST5 लिखा हुआ है। ST5 अगर ST5 है उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है ऐसे कुछ सिनेरियो में, तो आप कहोगे जी मैं अपने सीनियर कोलीग से भी इसकी ठीक है दोबारा सर। अपना वो कर सकती हूँ, ओपिनियन ले सकती हूँ या उनसे बता ठीक। सकती हूँ। ठीक। ठीक। दूसरा ऑफ जी। कोर्स अब ये हम करेंगे, हमने ऑन्कोलॉजी वाली करनी है, डिपेंडिंग अपॉन योर फैसिलिटी। क्या कोई ऐसा हुँ। स्पेसिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट के वो सेंटर है या उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी हम साथ में उसकी अरेंजमेंट आप करके उनको भी बुला लो। ठीक सर। वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जनरली खुद करना चाह रहे हो तो आपके अगर सेटअप के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर अपना कोई ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट है तो उसमें, अदरवाइज जहाँ भी है, वरना ऑफ कोर्स लास्ट बिट वो रहती है कि जी हम उसको रेफर कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या करेंगे। और इन ठीक। सब की जिस तरह मैंने कहा था, क्योंकि ये कैंसर की वो है, उसका अपना एनेस्थीसिया की फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें उसकी इस एज के अंदर अपना क्या कहते हैं कार्डिक कोमो या उसका सारा कुछ कोमोर्बिडिटीज़। सारी ठीक सर। उसको रूल आउट शुरू करो। जी सर। तीसरी जो थी आपकी लेप्रोस्कोपी वाली, उसमें सिर्फ एक पॉइंट रह गया कि आइदर उसमें 2 चीज़ें आप कर सकते हो। एक ये जो है दोनों ही लिखी हुई है। आप उसे एक्सप्लेन करोगे कि या तो ये सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, हुँ। कि सिर्फ हमने इसे डायग्नोस्टिक करना है, उसके बाद फिर हम अगली दफ़ा जो भी स्टेप होगा फिर आपको बता के करेंगे। और ठीक। अगर आपने प्रोसीड करना है तो फिर उसकी तैयारी उसके हिसाब से ज़्यादा होगी। क्या वो चीज़ लेप्रोस्कोपिकली प्रोसीड होगी या वो चीज़ हुँ। बाद में उसकी रिपोर्ट में। लेप्रोटमी क्या करके करोगे या किस लेवल तक पहले आप उसे करके बताओ। ठीक सर। और जो भी आपकी बेटा होगी ना इनफर्टिलिटी के लिए या सब फर्टिलिटी के लिए आप अगर करते हो, तो उसमें सिर्फ जी आपने सर। लेप्रोस्कोपी नहीं करनी, उसके साथ आपने हिस्ट्रोस्कोपी साथ ज़रूर करनी टू कंप्लीट द वर्कअप। ओके सर। सर एट द टाइम ऑफ लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर? अब क्या लेप्रोस्कोपी के साथ हिस्ट्रोस्कोपी नहीं हो सकती?
नहीं, मैं ना ये एक पॉइंट क्लियर भी करना चाह रही थी जब मैं कल इसे पढ़ रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल वो सिनेरियोस में कह रहे थे कि नीचे ये तो डिपेंड करेगा कि आपको एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एक पेशेंट की एचएसटी हुई है, उसका नॉन कंक्लूसिव है रिजल्ट, या ये कि एक पेशेंट की एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री की तरफ जा रहा है, उसके लिए लेप्रोस्कोपी हो रही है, तो फिर वो आगे से फर्दर आपसे पूछेंगे अच्छा स्टेज 1 है तो क्या करेंगे, स्टेज 2 है तो क्या करेंगे, एंडोमेट्रियोमा मिल गया है तो क्या करेंगे। तो और ये भी हो सकता है कि 1/3 में ये नेगेटिव लेप्रोस्कोपी हो। तो सर मैं वहां पे भी ये कंफर्म करना चाह रही थी कि अगर पहले किसी का एचएसटी हो गया है तो क्या स्टिल हम हिस्टेरोस्कोपी करेंगे, अब किसके लिए करेंगे जब हम एक बार पहले कैविटी और वो ट्यूब्स देख ओके चुके हुए हैं तो? बेटा, देखो अगर जिसकी एचएससी हो गया तो उसकी दोबारा लेप्रोस्कोपी क्यों कर रहे हैं? हाँ, अनलेस के अंटिल वो एचएससी वो हुआ हुआ है कोई 3 या 5 हम्म, साल पहले। ठीक। जिसका भी रिसेंटली हुआ हुआ है, अभी लेट्स सपोज हम्म, 6 महीने पहले या लेट्स सपोज इवन अबाउट साल पहले भी हुआ हुआ है, तो उसकी रिपीट एचएससी करने की कोई इंडिकेशन होनी चाहिए ना, या कोई अल्ट्रासाउंड में हम्म, फाइंडिंग ऐसी आ गई या कुछ और कोई ऐसी चीज आ गई, हम्म, तो वो तो फिर कैंडिडेट ही नहीं बनेगा जिसकी आपने लेप्रोस्कोपी तो आप उसकी कर रहे हो जिसकी आपने लेट्स सपोज ट्यूबल स्टेटस चेक करना है, या उसके ठीक। अल्ट्रासाउंड को रिव्यू करोगे कि उसमें नॉर्मल था कि उसमें कोई सिस्ट आई हुई है या उसका कुछ और है। स्पेसिफिक हिस्ट्री के अंदर जो इनफर्टिलिटी के साथ रहती हैं वो इरेगुलर पीरियड्स, हम्म, डिस्मेनोरिया और कोई ऐसी और हम्म, फाइंडिंग आप लेना चाहते हो तो वो, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हम दोनों चीजें भूल गए, सिम एनालिसिस का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। सर मैं सीमेन एनालिसिस को हिस्ट्री में भी नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि हाँ, मैंने कहा कि जब मुझे वो दे रहे हैं कि ये एक फीमेल है जो अब लेप्रोस्कोपी पे है, तो इसका मतलब ये है कि इवेलुएशन में हस्बैंड क्लियर हो गया हुआ है, क्या ये हाँ, पॉइंट नहीं? नहीं फॉर अगर आप उसकी इनफर्टिलिटी के लिए करते हो, जी सर। इनफर्टिलिटी के लिए कर रहे हो, तो उसमें फिर बहुत ज़रूरी है कि आपने सेमेन को पेशेंट के 10 मिनट्स की कम से कम रिपोर्ट ज़रूर देखनी है, ठीक सर। और प्रेफरली फ्रेश रिपोर्ट। ओके सर। वो आपका ज़रूर है, वो हम दोनों के इसमें क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप रीअसेस रीवैल्यूएट करते हो तो उसमें पॉइंट ज़रूर आ जाता है कि जिसका सेमेन एनालिसिस हुआ हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो एज़ोस्पर्मिया आ जाता है तो, हम्म, या बिल्कुल बहुत लो काउंट आ जाता है तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग लेप्रोस्कोपी। ठीक सर। फिर हमने स्टेटस देख के ट्यूब स्टेटस देख के क्या करना? दिस इज हम्म, 90 स्टिचेस, लेकिन वो आपने मांगना जरूर है। वो नहीं ठीक। मांगोगे तो उसमें फिर आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। ओके सर। चलो। सर इसका मतलब ये कि जिस तरह से अभी ये सिनेरियोस प्रेजेंट किए हुए हैं, एक सिनेरियो दिया होगा और हमने मैं थोड़ा सा स्टेशन को थोड़ा सा मुझे समझा दें कि फिर हम एग्जामिनर को अस्सलाम वालेकुम कह के स्ट्रक्चर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और हम हिस्ट्री के पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और फिर एग्जामिनर हमें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन, वो हमें इन्वेस्टिगेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देंगे एंड देन उनके अकॉर्डिंगली हम अपना मैनेजमेंट प्लान बता देंगे। नहीं बेटा, आप जब जी। जाओगे, आप पहला सिनेरियो अपना, माय फर्स्ट पेशेंट इज 36 years of old, presented with heavy menstrual bleeding and ultrasound is a fibroid. मैडम और सर, आई वुड लाइक टू हैव सर्टेन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। वो पूछेंगे क्या, आप उसमें फिर मांग लो कि जी मुझे अल्ट्रासाउंड चाहिए, मुझे हम्म, उसकी एज भी चाहिए, मुझे प्रीवियस हम्म, उसकी सर्जिकल हिस्ट्री में कुछ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले लो, और उसके ठीक सर। एग्जामिनेशन फाइंडिंग मुझे चाहिए। ये तीन ओके चार लेने सर। के बाद जल्दी से स्पेसिफिकली जो आपको चाहिए वो हम्म, आप साथ साथ वो अगर देता है कि अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, एचबी उसकी 8 है या 7 है, और उसकी जो फाइंडिंग में एक इरेगुलर मास है जो अबाउट 20 वीक साइज का है, और ये है, और उसकी एलएमपी हमारी ये डेट पे है, कॉन्ट्रसेप्शन का आपने पूछ लिया, ये करने के बाद फिर देन यू विल हम्म, स्टार्ट कि जी आई टेल माय पेशेंट की जी एज उसकी ये फाइंडिंग्स हैं, उसकी एचबी लो है तो उसके लिए हमें ये अरेंजमेंट करनी है, एमपी उसने इस टाइम का होना है, प्लान हमारा जाके प्रॉब्ली विद फेनिस्टीन और मिडलाइन स्कार इंसियन हम उसका मायोसिल फाइब्रॉइड्स रिमूव करने हैं, एंड जी। क्या उसकी अगर इसी के लिए सपोज अगर हम्म, कोई इनफर्टिलिटी भी होती है 5 years का हो, तो उसकी ट्यूबल्स का स्टेटस भी हमने देखना है कि नहीं देखना, अभी देखना है कि हम बाद में देखें। ठीक और सर। ठीक उसके पॉइंट लेके फिर देन विल कंटिन्यू। इसी तरह जब सेकंड वाला केस आ जाएगा जी, उसमें मुझे ये सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाहिए और मुझे ये इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक चाहिए, मुझे वो बता दें, फिर उसके बाद आप काउंसलिंग स्टार्ट करो। ओके सर। सर यहाँ पे ना हर केस से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स है मेरे, क्या मैं पूछ लूँ? अ, बेटा एक सेकंड पहले, जी। इमरान अपना डॉक्टर शनाज की है क्लास? जी जी सर सर, है आज मैं। सर मैडम आ तो नहीं गई? सर अभी नहीं आई।
चलो जैसे आए तो मुझे बता देना, फिर मैं रुक जाऊंगा प्लीज। हाँ जी बेटा पूछ। सर फाइब्रॉइड में अगर हम माइमेक्टमी के लिए प्रोसीड करते हैं तो क्या हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं? एंडोमेट्रियल बायोप्सी फॉर व्हाट? सर मैं अभी जब इसकी पढ़ रही थी ना, आरसीओजी का पता नहीं वो क्या था, कंसेंट था कि क्या था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपने काउंसलिंग करनी है पेशेंट की कि फाइब्रॉइड के बाद जो लेट कॉम्प्लिकेशन है वो मेनोरेजिया है, जो 65% ऑफ द केसेस में प्रेजेंट है, और वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द कोइंसिडेंटल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीड की वजह से होती है। तो फिर मैं एक ज़हन में एक आइडिया आया था कि मैं आपसे पूछूं कि क्या माइमेक्टमी से पहले हम इसको रूल आउट नहीं करेंगे बाय एंडोमेट्रियल बायोप्सी? बेटा दो तरीके हैं इसके करने के। वन इज कि जो आपका पहले अल्ट्रासाउंड है उसमें आप उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस देख सकते हो, ठीक सर। उसके अकॉर्डिंगली देन यू कैन डिसाइड कि अगर वो एक से ज़्यादा आती है तो वो तो कितनी आती है। नंबर टू तरीका ये है कि रूटीनली जो हम यहाँ पे करते हैं एज अ हमारी तो ये अपनी प्राइवेट प्रोटोकॉल्स ये हैं कि हम हर मैरिड लड़की की जिसकी हमने माइमेक्टमी करनी हो उसकी हिस्टोस्कोपी हम ज़रूर करते हैं। उसी रीज़न ये होता है कि हमें हिस्टोस्कोपी के अंदर उसका नज़र आता है कि जी ये कोई अंदर पॉलिप या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हैवी ब्लीड कर रहा है उसकी वजह से। तो ठीक फिर सर। दैट इज़ द रीज़न, या तो हम उसकी पॉलीपेक्टमी हिस्टोस्कोपिकली हो जाती है, वरना फिर जब हम उसकी ऊपर से लेप्रोटमी करते हैं या लेप्रोस्कोपिकली भी करते हैं, तो फिर हम उसका कैविटी ज़रूर ओपन करते हैं ताकि वो हम अंदर वाली जो कॉज़ है उसको हम निकाल दें। ठीक सर। Well, सर for your exam purposes आप हम्म। उसमें स्पेसिफिकली अपने अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग पूछ लो कि जी उसकी जो फाइब्रॉइड है वो प्रोट्रूड कर रहा है एंडोमेट्रियम को, नंबर वन। अगर कर ठीक रहा सर। है तो कितना परसेंटेज कर रहा है, फिगो स्टेजिंग आ जाएगी ना उसकी। ठीक सर। जीरो है, ठीक। देखो अगर वो जीरो जीरो है वन टू। वन, जीरो वन टू जी के सर। साथ, जीरो वन है तो फिर तो वो नॉर्मली वजाइनल रूट से निकल आता है। अगर उससे ठीक बड़ा सर। है या मतलब सॉरी टू थ्री आ जाता है तो फिर वो आपने एब्डोमिनल रूट से या लेप्रोस्कोपिक रूट से निकालना। तो ओके सर। उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए फिर देन यू सी अगर वो आ रहा है तो उसमें मेरा ख्याल है हर किसी की तो एंडोमेट्रियल थिकनेस इसकी ज़्यादा है तो उसकी बायोप्सी ज़रूर कर लो आप, अदरवाइज नहीं। एंड तीसरा विथ इसमें मेंटेन। जिसमें थिकनेस ज़्यादा हो उसमें उसकी हिस्ट्री टेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी उसने कोई मेडिकेशन तो नहीं ली पीरियड स्टॉप करने के लिए, क्योंकि जब आप ठीक सर। उसको प्रोजेस्ट्रोजेंस दे देते हो तो उसमें फिर हम्म। उसकी थिकनेस ज़्यादा ही आएगी ठीक सर। क्योंकि और शेक सर होगा। सेकंड, ठीक है सर, सेकेंडली इसमें इसी आरसीओजी के लीफलेट में लिखा हुआ था कि टिल 16 वीक साइज फाइब्राइड तक आप फाइनेंशियल इंसिजन देंगे और मोर देन 16 के ऊपर आपने मिड लाइन वर्टिकल देना है, लो मिड लाइन वर्टिकल। तो सर हमारे यहाँ सेटअप में तो 20 वीक के भी और 24 वीक्स के भी जो है वो फेनन स्टील पे और वो पे क्लैंप लगा के स्क्रू लगा के आउट हो जाते हैं, तो हमने एग्जाम में पे इसका क्या रेफरेंस लेना है? बेटा उसमें आप ये करोगे कि जी कि मैं इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स देख के देख लूंगा कि मोबाइल है हम्म। या वो फिक्स्ड है, ठीक सर। उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड। लेकिन आई स्ट्रांगली सजेस्ट फॉर द एग्जाम पर्पसेस आप 18 वीक्स से ऊपर वाले को इजीली मिड लाइन सीन दो, वरना फंस जाओगे, आपको फंसा देंगे। उसमें ठीक फंसा सर। इतना देंगे, वो कहेंगे जी आपने फेंसिंग दे दिया, वो निकल नहीं रहा पाए, फिर क्या आप ठीक सिटी सर। शिफ्ट करोगे आप? ओके सर। फॉर एग्जाम और पर्पसेस क्योंकि उस चीज को आप डिफेंड कर सकते हो विद योर दीज गाइडलाइंस या जो आपके पास इंफॉर्मेशन। ठीक सर। यू जस्ट कीप इट सिंपल, 18 से जो ऊपर है उसको आपने कहा कि जी हम उसको मिड लाइन दें। ओके सर। और सर अगर एग्जामिनेशन में हमें एक बिग फॉरवर्ड दे देते हैं तो क्या हम एनी रोल ऑफ जेएनआर या चैनल लॉक्स बोलेंगे? वो पेशेंट की हिस्ट्री उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा उसकी कॉस्ट, उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसका इकोनॉमिक्स, लेकिन हमने कितनी दफ़ा आज तक कभी दी है, मैंने तो कभी नहीं दी बेटा। तो मैंने तो कभी नहीं देखी अपनी ट्रेनिंग में, लेकिन हाँ वो मैं इसी लीफलेट्स में पढ़ रही थी कि ये एक्सेप्ट ये कि आपके सर्जिकल प्लेन्स को थोड़ा कर देता है मीन्स, और इसमें रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, बाकी सब इसके बेनिफिट्स हैं। तो मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैं कहीं आपसे क्लियर कर लेती हूँ पॉइंट। मैंने पर्सनली तो आज तक कभी नहीं दिए, लेकिन आई एम नॉट वेरी कीन ऑफ के गिविंग हमारे अपने सोशल सेटअप के अंदर, क्योंकि ये वाले जो आपके टॉक्स बनते हैं ये हमारे सोशल सेटअप्स के अंदर होते हैं। हाँ कोई पेशेंट आके कोई बात है वो आके पूछती है कि जी कि कोई और तरीका है इसको श्रिंक करने का, ये आप जरूर कह सकते हो कि जी हम उसको श्रिंक करके फिर हो सकता है कि फिर हम उसका इंसिजन का चेंज हो जाए, फ्रॉम मिड लाइन इट विल कम डाउन, अगर 30% कम हो जाए तो फेनिस दे दें या हम उसको फिर लेप्रोस्कोपिकली मैनेज कर लें। लेकिन अदर देन दैट ओके।
आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी रोल ऑफ वहाँ पे बार इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है सर्जरी का, इस टाइम के इलेक्टिव। जब वो वेटिंग टाइम में अगर वो ये दे दें जो स्पॉन्सर्ड NHS के थ्रू है, पेशेंट को कॉस्ट नहीं पड़ती, तो व्हेन द साइज श्रिंक्स तो उसमें फिर इंट्राऑपरेटिवली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड वो सारी जितनी लिस्ट है वो तो आपकी कम होती जाती है। ठीक सर, थैंक यू सर। चलो, और कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर। चलो, आप कहाँ के ट्रेनी हो? सर शालामार हॉस्पिटल। चलो, नहीं आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी सर। बेटा इसमें एक चीज ध्यान रख, यू रश इन टू थिंग्स, थोड़ा सा ना उसको हल्की सी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दो, बाकी आई थिंक यू डिड वेरी वेल। इसमें आपके मेरा अपने हिसाब से अगर 8 नहीं तो 7 नंबर तो डेफिनेटली आप ऑफ दिस स्टेशन। थैंक यू सर। अच्छा, बस मेरा एग्जाम पास करे थे अच्छा हो डॉक्टर जाएगा। बना। कभी कोई सुना है किसी के इम्तिहान आज तक कहीं पास ना हुआ हो? सबका हो जाता है। पता नहीं सर, मेरे तो दिल में ना ये खौफ बड़ा बैठ गया है। मुझे मेरी मैम कहती है खौफ निकाल दो बस, और कुछ नहीं तुम्हें चाहिए, लेकिन मेरा बड़ा ही खौफ बैठ गया है। आज तक किसी ऐसे बंदे से मिले हो जिसका इम्तिहान अभी तक पास ना हुआ हो? सर मुझे ना जो अटेम्प्ट्स है ना उनसे डर लगता है। क्यों, क्या डर लग? ऑलरेडी ऑलरेडी किड्स की सफरिंग है, घर बैठे हुए हैं, अनपेड अनएम्प्लॉयड, गवर्नमेंट जॉब मेरी के 2 लेटर आ गए हुए हैं। मैं कहती हूँ या अल्लाह एग्जाम पास हो तो ये सेटल डाउन करूँ सारे इश्यूज। बेटा जिंदगी में मुझे लिखवा लो आज या इम्तिहान के बाद मुझे जरूर बता देना, ये इश्यूज नहीं होंगे तो दूसरे इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। तो इश्यूज ऑलवेज गोना बी देयर, दे आर ऑलवेज गोना बी देयर, जो मर्जी आप कर लो। हाँ वो चेंज होते हैं जरूर, डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं एग्जाम में। लेकिन जितना रिलैक्स करके आप करके जाओगे और अपने आप को फोकस रखोगे, यू विल बी ऑल राइट। ये तब यस। होता है जब आप थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाते ठीक हैं। और सर। जो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये इस किस्म का जो क्लिनिकल सिनारियोज आते हैं या इस तरह के 3 अगर सिनारियोज हैं, आपने 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है। नंबर 1, जो पहले आपको 1 मिनट या 2 मिनट मिलने हैं उसमें इसके पॉइंट जरूर लिख लेने हैं आपने। ठीक सर। और आपके पास टाइम का जरूर आपको होना चाहिए कि अगर आपके पास ये 3 सिनारियोज हैं तो उसमें एक सिनारियो के अंदर हमने 10 मिनट में पूरा करना है, तो 2 सिनारियो को आपने 3-3 मिनट देने हैं, एक सिनारियो को शायद आप 4 मिनट दे दो। ठीक सर। तो आपको लगे कि थोड़ा सा लंबा है, जैसे इस केस के अंदर जो नंबर 2 था, जी MDT वाला एमडीटी मैलिग्नेंस। वाला, हाँ मिलेंसी वाला, उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। जो पहला और अपना लास्ट वाला था उसमें इतना ज्यादा नहीं सिनारियो, उसमें रिलेटिव्स की इन्वॉल्वमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन देना कि आपको कितना आइडिया है कि आपकी रिपोर्ट्स में क्या है, आपको कितना बता चुके हैं। अब आगे उसके बाद आगे विल स्टार्ट विद कि अगर पहले ही पता है कि हाँ कैंसर है तो थोड़ा सा रीश्योर करोगे, अगर नहीं है तो फिर इसमें ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का भी आ जाएगा कि ये हमारी आपकी रिपोर्ट्स जो हैं ये इतनी नहीं आ रही, बाकी रिपोर्ट्स मैंने अभी कुछ करानी है या देखनी है, उसके बाद ये करेंगे ड्यूरिंग सर्जरी क्या क्या हो सकता है। ठीक पर सर। इंशाल्लाह यू विल डू फाइन। इंशाल्लाह सर, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। आमीन। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो ओके बेटा, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह किसी और के हाफिज। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी?